My name is Iman Baloch, and today with me I have Faisal Irfan, who will be talking about the banking sector and will also be giving you some tips on it as well. Just to give you a brief introduction about Faisal. So Faisal has a bachelor's degree in accounting and finance from LUMS, and he's also CFA level 3 candidate. He has also worked both on the buy side and the sell side of equity research, and he's currently covering commercial banks and engineering sectors at KSP. Prior to joining KSP, Faisal has worked with ABL Asset Management and Integrated Equities, where he also looked after the chemicals and automobile sectors. So with that, I'll hand it over to Faisal Irfan to take it forward from here. Thank you, Eamon. As Eamon introduced me, my name is Faisal Irfan. So today I'll be talking about the banking sector and the tips about how to invest in the banking sector. So I'll share with you guys my presentation, and then we can start the session. So I guess most of you guys must have known how a bank obviously works. So starting off, uh, uh, it is a very simple model that a bank जो होता है basically it takes deposit from the depositor and then it pays some markup to the depositor on that deposit, and then it lends to obviously either individuals, corporates, or the government, and it earns a markup on that too. So the spread between the markup it earns and it pays to the depositor, वो जो होता है basically that is the core income of the bank, and which is positively related to the interest rates. जब interest rates बढ़ते हैं तो obviously जो spread between the markup that has been earned और जो डिपॉजिट पे पे किया जाता है वो बढ़ जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो ऑब्वियसली जो स्प्रेड है दैट थिन्स, और जो कोर इनकम जो है वो ऑब्वियसली कम हो जाती है. तो आई मीन रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा चीज़ किसी भी बैंकिंग सेक्टर को इम्पैक्ट करती है वो होते हैं इंटरेस्ट रेट्स. आपने रिसेंटली अगर देखो तो इंटरेस्ट रेट्स वर 3 to 4 months back they were at 13.25%. That was a historically high level. Last time अगर आपने स्लाइड भी देखी हो तो this level was seen in back in 2009. At that time, interest rates were that high, and then they touched this at in 2019. So, I mean, obviously, when the interest rates started increasing, so the spread of the banking sector, obviously, or the core income of the banking sector, also started to increase. And I mean, the basic thing which one should always know is that जो interest rates हैं, they are directly correlated with the inflation in the economy. So higher the inflation, higher will be the interest rates. So basically, what happened if you go back in 2017? So at that time, GDP growth rate was around above 5%. We had a stable currency. There was no inflation in the economy. So our interest rates were around 5.75%. But then, I mean, as macroeconomic situation started deteriorating, so we had a very big current account deficit, due to which, I mean, we had to obviously depreciate our currency. So when we depreciated our currency by more than 50%, so because we are an import driven economy, so import driven economy में because जो क्या depreciation की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो आने लगी, और उसके बाद ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक ने इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट इन्फ्लेशन जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ानी शुरू कर दिए. तो अगर आप फॉर एग्जांपल इधर देखें 2015, look if you look at this graph, the discount rate was constant, inflation was very subdued, it was below 4%, 4.5%. Then obviously when we depreciated our currency, so inflation started to rise. So if you see here, the inflation touched as high as 12%. So the central bank has to obviously increase the interest rates in order to control the rising inflation. और basically जो central bank है वो ये obviously make sure करता है that जो आपके real interest rates हैं they are obviously 1.5%. If you talk about historically last 20 years का अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन और जो रियल जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स हैं उनमें तकरीबन कोई
1.25 से 1.5% का ही डिफरेंस होता है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो हमेशा इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट हैज हैपेंड इज ये ब्लू लाइन इज ऑब्वियसली ऑफ इन्फ्लेशन, तो ऑब्वियसली जो डिस्काउंट रेट है और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो दे आर हायर देन द प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन। हाउएवर रिसेंटली अगर आप देखें in the I mean, after the COVID-19, we saw really, I mean, sharp monetary easing. So interest rates from 13.25% से जो है वो कट के तकरीबन कोई 7% पे जो है वो आ गए, जिसने ऑब्वियसली बैंक्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया बिकॉज ऑब्वियसली उनके स्प्रेड्स जो हैं वो श्रिंक होने लगे हैं फ्रॉम द आई मीन इट इज इन अ डेकेड दैट वी आर इन a negative real interest rate scenario कि currently inflation है that is around 8% और in order to provide relief जो सेंट्रल बैंक है उसने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काट के तकरीबन कोई 7% पे लिया है, तो वी हैव अ नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट। ऐसा कभी ऑब्वियसली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं होता। ड्यू टू कोविड-19 जो है बैंक ने ये काम किया, सेंट्रल बैंक ने, कि वो इंटरेस्ट रेट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ ऑब्वियसली कंज्यूमर डिमांड को जनरेट करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफी ज्यादा जो है वो कट कर दिए गए। जबकि प्रीवियसली अगर आप देखें हिस्टोरिकली तो इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं वो हमेशा जो है वो इन्फ्लेशन से 1.5 से 2% ऊपर होते हैं। इन रिसेंट टाइम्स जो है वो तकरीबन 1% नीचे हमारा नेगेटिव है रियल इंटरेस्ट रेट, विच इज ऑब्वियसली आई मीन गोइंग फॉरवर्ड अगर आप देखें तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम काफ़ी ज़्यादा कट देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज ऑब्वियसली इन्फ्लेशन अगर यहीं पे रही 8 8 साढ़े 8% या मे बी यू नो maybe 9% चली जाए due to shortage of food or obviously in rise in electricity tariff, so obviously we can't see a cut in the near future. So what we are expecting is के status quo ही रहेगा going forward. अब अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो ऑब्वियसली एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है, तकरीबन 24.5% वेट रखता है KSE 100 इंडेक्स के अंदर। तो द थिंग दैट ऑब्वियसली इफ यू want to compare the size of a bank, you should know कि उसका डिपॉजिट बेस कितना बड़ा है। अगर आप पूरे बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो उसका जो डिपॉजिट बेस है दैट इज अराउंड 15.2 ट्रिलियन। दिस इज द नंबर एज एट लास्ट क्वार्टर मार्च 2020। अगर आप रिसेंट नंबर की बात करें तो दैट इज 16.2 ट्रिलियन के टोटल जो है वो हमारे सेक्टर डिपॉजिट्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ द डिपॉजिट ऑलमोस्ट 61% जो है वो 6 बड़े बैंकों के पास है, जिसमें HBL, UBL, MCB, ABL, NBP और मिजान बैंक शामिल हैं। तकरीबन 61% जो है वो 15.2 ट्रिलियन का इन बैंक्स के पास ही है। अगर आप डिपॉजिट बेस की ग्रोथ की बात करें तो इन द लास्ट 10 ईयर्स डिपॉजिट बेस तकरीबन कोई 14% के कैगर से इंक्रीज हुई है। अगर सबसे बड़ा जो बैंक करंटली पाकिस्तान में है दैट इज हबीब बैंक, 16% जो है वो टोटल डिपॉजिट बेस का उसके पास है तकरीबन 2.4 ट्रिलियन। उसके बाद UBL at 1.6 ट्रिलियन, देन MCB at 1.2 ट्रिलियन, and then ABL at 1 ट्रिलियन, और फिर MEBL जो है that is less than 1 ट्रिलियन, and then NBP is obviously because the government बैंक, तो अगर प्राइवेट बैंक्स की बात किया तो ये 5 बड़े बैंक हैं, और NBP अगर डिपॉजिट बेस के हवाले से देखा जाए तो दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट बैंक विद डिपॉजिट बेस ऑफ 1.9 ट्रिलियन। So I mean, if you want to evaluate the size of a bank, obviously जब invest करना चाह रहे हैं तो obviously you should know कि deposit base is a thing by which you measure a size of a bank, because जितना बड़ा उसका deposit base होगा उतना ही ज़्यादा बैंक के पास funds होंगे to invest in either government securities or lend loans to corporate sector और जो obviously individuals हैं। तो higher the deposit base, bigger the bank is or bigger the bank's operations are. इसके बाद obviously with deposit it is obviously कोई ना कोई जो है वो आपको कॉस्ट पे करनी होती है टू द डिपॉजिटर व्हेन यू टेक आउट डिपॉजिट। तो एक बैंक की जो है वो ऑब्वियसली 3 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं। अगर आपने आप देखना हो तो द फोर मोस्ट डिपॉजिट्स आर द करंट डिपॉजिट, जिनके ऊपर ऑब्वियसली बैंक कोई अमाउंट जो है वो पे नहीं करता। अब जो बैंक है उसकी कोशिश ये होती है करंट अकाउंट का प्रोपोर्शन जितना ज्यादा हो उसके डिपॉजिट मिक्स में उतना ही बेहतर है, बिकॉज जितना ज्यादा उसके ऑब्वियसली जीरो कॉस्ट डिपॉजिट होंगे, बिकॉज करंट अकाउंट डिपॉजिट के ऊपर वो कुछ नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का अगर डिपॉजिट है और उसमें से 50 रुपए के वो डिपॉजिट्स हैं जिसपे बैंक कुछ पे नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली दैट इज गुड फॉर द बैंक और उसकी जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो बैंक की ये कोशिश होती है कि वो करंट अकाउंट प्रोपोर्शन टोटल डिपॉजिट का ज्यादा से ज्यादा रखे। अगर आप ऑब्वियसली स्लाइड में देखें तो यहाँ पे बैंक अल्सला का करंट अकाउंट डिपॉजिट सबसे ज्यादा है, दैट इज अराउंड 43% की। अगर उसके 100 रुपए के बैंक अल्सला के डिपॉजिट हैं तो उसमें 43 रुपए के वो डिपॉजिट है जिसमें बैंक अल्सला कुछ पे नहीं करता। सही है, और दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ द डिपॉजिट। आप नीचे देख भी रहे होंगे कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अगर मैं लास्ट ईयर की कंपेयर करूँ तो सबसे कम बैंक अल्सला की है।
तो और उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली सेविंग अकाउंट डिपॉजिट आ सकते हैं, जिसपे ऑब्वियसली बैंक जो है वो एक मिनिमम डिपॉजिट रेट जो है डिपॉजिटर को देता है। तो मिनिमम डिपॉजिट रेट इज ऑब्वियसली डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक। अगर आपने आई मीन दैट इज 150 बेसिस या 1.5% बिलो जो है वो पॉलिसी रेट या की रेट जो मिनिमम डिपॉजिट रेट होता है जो पे करना होता है बैंक को। तो और किसी बैंक की ऑब्वियसली ये सेकंड नंबर प्रायोरिटी ये होती है कि वो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स को मैक्सिमाइज करे, और ये करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट दोनों मिला के जितने ज़्यादा हो उतना बेहतर है। और फिक्स जो डिपॉजिट्स होते हैं वो कोशिश होती है सबसे ज़्यादा कम रहे, बिकॉज फिक्स डिपॉजिट्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली दे आर ऑब्वियसली वेरी एक्सपेंसिव। तो बैंक की ये कोशिश होती है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट कि वो अपने जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं वो कम से कम रखे। अब अगर आप ऑब्वियसली ऊपर ग्राफ देखें बैंक अगला का, तो दैट हैज़ अ हायर वेरी हाई करंट अकाउंट ड्यू टू विच उसकी जो कॉस्ट है वो सबसे लो है अमंग द peers. So अगर if you want to evaluate a bank, so obviously you should first look at the current account deposit base के current account deposit base कितनी ज़्यादा है और saving account deposit base कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा current account saving account या इसे कासा बोलते हैं ज़्यादा होगा, that is better for the bank. But obviously the first priority is to maximize the current account. Higher the current account proportion, lower the cost obviously. इसके बाद जो चीज़ है वो आपने ऑब्वियसली अगर लोन पोर्टफोलियो किसी भी बैंक का, ऑब्वियसली जैसे मैंने एक्सप्लेन किया पहले भी कि बैंक टेक्स डिपॉजिट्स एंड देन इट ऑब्वियसली ईदर लेंड्स टू कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स और ईदर इन्वेस्ट इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सो जो लेंडिंग वाला पार्ट है वो किस तरीके से ऑब्वियसली इवेल्युएट करना है। अब करंट सिनेरियो के अंदर व्हाट हैपेंड इज, अगर आप ग्राफ नंबर 1 देखें जहाँ पे मेरा कर्सर है, so I mean, what happened with the rise in interest rates? What happens is जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं जिनको हम एनपीएल्स कहते हैं, या ऑब्वियसली जो लोन्स जो पे बैक नहीं होंगे वो जो है इंक्रीज करना शुरू कर जाते हैं बैंक्स के। सो अगर आप लास्ट साइकिल में देखें तो व्हाट हैपेंड इन 2008 एंड 2009 दैट व्हेन इंटरेस्ट रेट्स या डिस्काउंट रेट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, सो एनपीएल्स उसके बाद काफी ज्यादा तादाद में जो है वो आने लगे थे। सही है। और उसके बाद ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने लगे तो एनपीएल्स जो है वो कांस्टेंट होने लगे। और फिर ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दोबारा से हमारा जो इंटरेस्ट रेट थे वो बढ़ने लग गए और यहाँ पे अब एनपीएल जो है वो आने शुरू हो गए हैं एब्सोल्यूट अमाउंट के अंदर। सो व्हेन इंटरेस्ट रेट्स स्टार्ट इंक्रीजिंग, सो व्हाट हैपेंस इज नॉट नॉन परफॉर्मिंग लोन्स और जो बैड लोन्स हैं वो बैंक की बुक में आना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली अगर पहले एक लोन था उसमें मैंने 6% देना था और वो एकदम बढ़ के तकरीबन 12 या 13% हो गया, और मेरी ऑब्वियसली बिजनेस के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 13% पे कर सकूँ, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू डिफॉल्ट। तो जब मैं डिफॉल्ट करूंगा तो ऑब्वियसली मैं बैंक को पैसा नहीं दूंगा। जब मैं बैंक को पैसा नहीं दूंगा तो उसके बैड लोन के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं ऑब्वियसली तो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। अब बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो है अगर आप पिछली साइकिल की बात करें इस उसके अंदर, तो यहाँ पे अगर आप 2008 की बात करें, 2008 के बाद जब इंटरेस्ट रेट जो है वो पीक हुए थे, तो 2011 में जो आपका इन्फेक्शन रेशियो है, बेसिकली इन्फेक्शन रेशियो इज कॉल्ड कि अगर 100 रुपए का लोन दिया हुआ तो उसमें से कितने रुपए का लोन जो है वो खराब हो गया। सही है। तो अब बेसिकली व्हाट हैपेंड इज 2010 के अंदर कि हमारा जो इन्फेक्शन रेशियो था या खराब हुए लोन्स थे एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल लोन्स, दे टच्ड एज हाई एज 15% सो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम इज कि अगर 100 रुपए का लोन बैंकिंग सेक्टर ने किसी बंदे को दिए हुए थे या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में लेंड किए हुए थे, तो उसमें से 15 रुपए जो है वो खराब हो गए। तो एज हाई एज दैट जो है वो इन्फेक्शन रेशियो या नॉन परफॉर्मिंग लोन्स चले गए थे। अगर इफ यू लुक एट हियर इन दिस ग्राफ, करंटली दिस इज नॉट द सिनेरियो। अगर आप इन्फेक्शन रेशियो देखें तो इन्फेक्शन रेशियो इतना ज़्यादा डिटेरिएट नहीं हुआ, 15% नहीं, 8-8.5% के अराउंड है। जब लास्ट बेसिकली ने अपना रिव्यू शायद किया था उसके मुताबिक 8.8% था। करंटली भी अगर आप देखें तो अगर टॉप 18 बैंक्स का उठा के देखें विच आई वाज इवैल्यूएटिंग, तो इट इज लेस देन 9%। सो व्हाई इज इट द केस दिस टाइम कि एनपीएल उस तरीके से नहीं बढ़ रहे? तो उसकी जो पहली ऑब्वियसली जस्टिफिकेशन ऑब्वियसली वो ये है कि जो एडीआर्स है, मतलब जो लेंडिंग है, अगर आप 2008 की बात करें तो उस वक्त लेंडिंग बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, यही तकरीबन बैंक के अगर 100 रुपए के डिपॉजिट उसने 75-76% जो है वो लेंडिंग की हुई थी टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। करंटली इट्स नॉट द केस। करंटली इन दिस सिनेरियो व्हाट हैज हैपेंड इज कि जो ऑब्वियसली लेंडिंग है वो बहुत इज नॉट दैट एग्रेसिव। जो एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो है, मतलब अगर 100 रुपए के जो है वो डिपॉजिट हैं बेस, तो सिर्फ उसमें से 50 रुपए जो है वो लेंड किए गए
गए एज कम्पेयर टू 75% जो कि लास्ट साइकिल में जो है वो लेंड किए गए हुए थे. तो लैंडिंग इज नॉट दैट एग्रेसिव. जब लैंडिंग ऑब्वियसली लेस होगी तो कॉर्पोरेट सेक्टर और द इंडिविजुअल तो ऑब्वियसली जो है वो एनपीएल लोन खराब होने का खर्चा भी कम होगा. तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन द रीसेंट साइकिल दैट डिस्पाइट इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट्स, जो एनपीएल्स हैं दे हैव नॉट rose to that level के वो 14-15% जो है वो टच कर जाएं as it did in the last cycle, which is obviously positive for the bank. अब अगर ऑब्वियसली जो बैंक्स को अगर आपने एवेल्युएट करना है तो इन द करंट सिनेरियो इकोनॉमिक स्ट्रेस था, ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए, बट ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड-19 देयर इज स्ट्रेस इन द इकोनॉमी और एनपीएल जो है वो आ सकते हैं. तो इफ यू वांट टू ऑब्वियसली इन्वेस्ट इन अ बैंक यू शुड बी लुकिंग एट के एडीआर किस तरह के हैं. इज अ बैंक हैज अ वेरी एग्रेसिव एडीआर. अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एडीआर है तो ऑब्वियसली उसका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं, जो बैड लोन्स हैं, वो भी उसी हिसाब से आएंगे. फॉर एग्जांपल अगर एक बैंक है उसने 100 रुपए के डिपॉजिट थे और 70 रुपए के डिपॉजिट जो है वो लेंड किए हैं, तो जो बैड लोन्स आने का खर्चा है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वो बैंक जिसने 100 में से सिर्फ 50 रुपए लेंड किए हैं. तो ऑब्वियसली इफ यू आर इवेल्युएटिंग अ बैंक इन द करंट सिनेरियो ऑब्वियसली यू शुड बी लुकिंग एट के एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो किस बैंक का ऑब्वियसली कितना एग्रेसिव है. हायर द एडीआर और एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो लेस मोर रिस्की द बैंक इज. इसके अलावा एक चीज होती है ऑब्वियसली इन्फेक्शन रेशियो जो है वो देखना चाहिए बैंक का कि इवन द ऑब्वियसली करंटली इन्फेक्शन रेशियो कहाँ खड़ा हुआ है और इन लास्ट 1 or 2 years इन्फेक्शन रेशियो किस तरीके से डिटेरिएट हुआ है. अगर ऑब्वियसली इन्फेक्शन रेशियो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो लैंडिंग है इट्स नॉट दैट प्रूडेंट, यानी उन इंडस्ट्रीज को नहीं लैंड किया हुआ जिनमें ऑब्वियसली स्ट्रेस कम है और मे बी गोइंग फॉरवर्ड जो है एनपीएस और ज़्यादा आ सकते हैं. और अगर ऑब्वियसली जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है, इन्फेक्शन रेशियो जैसे हम कहते हैं, वो अगर कम है तो ऑब्वियसली दैट शोज के बैंक ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रूडेंट लैंडिंग की हुई है, बिकॉज इट्स क्वाइट इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट. उसका जो इन्फेक्शन रेशियो है इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ. यहाँ ऑब्वियसली चार्ट्स के अंदर मैंने ऊपर एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो दैट इज द फर्स्ट मेट्रिक्स दैट यू शुड बी लुकिंग एट के हाँ अब जितना ज़्यादा उसका एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो होगा या जितनी ज़्यादा उसने लैंडिंग की होगी दैट शोज के उतना ज़्यादा बैंक रिस्की है. दूसरी चीज़ यू शुड बी लुकिंग एट इज द इन्फेक्शन रेशियो के रिसेंट सिनेरियो के अंदर इन्फेक्शन ने किस तरीके से डिटोरिएट किया. अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली लैंडिंग उन सेक्टर्स को है जहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है. अगर इन्फेक्शन रेशियो जो है वो ऑब्वियसली एक कटेल्ड हद तक रहता है तो दैट इज पॉजिटिव फॉर द बैंक के भाई उन्होंने वहाँ लैंडिंग की हुई जहाँ पे इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस नहीं है उन सेक्टर्स के अंदर. सेकेंडली जो चीज़ ऑब्वियसली अब जब प्रोविजंस आते हैं या बैड लोन्स आते हैं तो एनपीएल्स आते हैं या बैड लोन्स आते हैं तो ऑब्वियसली बैंक्स जो है उनको प्रोविजन बुक करना पड़ता है और प्रोविजन ऑब्वियसली हिट्स देयर प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली. तो अब जो कवरेज होती है बेसिकली वही होती है कि ऑब्वियसली आपके पास फॉर एग्जांपल 15 रुपए का 100 रुपए की आपकी लैंडिंग थी, उसमें से 15 रुपए जो है वो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स आ गए. अब नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के जब आ गए तो आपने ऑब्वियसली यू हैव टू प्रोवाइड फॉर देम, आपने प्रोविजन बुक करनी है. तो आपने कितने ज़्यादा बैंक्स कितने ज़्यादा जो डिपॉजिट है उनकी प्रोविजन बुक की हुई है ऑलरेडी. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी 90% की कवरेज है तो इट मीन्स कि मैंने 15 में से 13.5 जो है रुपीज़ के लोन उसके लिए और मैंने पहले से प्रोवाइड किया हुआ है. तो गोइंग फॉरवर्ड अगर एनपीएल्स आते भी हैं और ये एनपीएल रेशियो यहाँ से बढ़ जाता है तो मेरे ऊपर जो ऑब्वियसली हिट होगी पीएनएल के ऊपर वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी एज कम्पेयर टू वो बैंक जिसने 70% प्रोवाइड किया हुआ है, बिकॉज उसके पहले से ही जो प्रोविजनिंग है वो सिर्फ 11.5% के ऊपर है या 10.5% के ऊपर है, तो उसने वो भी प्रोवाइड करना है जो 4.5 एडिशनल आएगा. और आगे जो प्रोविजन ऑब्वियसली एनपीएल्स इंक्रीज होंगे उसके लिए भी it has to provide for. So obviously you should be looking at कि coverage कितना ज़्यादा है, higher the coverage better it is for a bank. अब basically ये these charts obviously show कि जो top banks हैं उनका exposure कौन कौन सी industries के अंदर है. I mean in Pakistan obviously banks don't take a lot of risks, so mostly जो banks हैं उन्होंने power sector के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना exposure लिया है, because power sector में obviously it's dollar hedge currency, no matter किधर चली जाए डॉलर इज 14% का IRR जो है वो कंपनीज को मिलता रहता है. तो बेसिकली द चांसेस ऑफ डिफॉल्ट आर ऑब्वियसली वेरी लो. सो मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स दे गो फॉर द पावर सेक्टर और जो रिटेल या होलसेल की जो बेस है दैट इज वेरी लो. अब इन द करंट सिनेरियो यू शुड बी लुकिंग एट के बैंक्स ने ऑब्वियसली उन सेक्टर्स में तो नहीं लैंडिंग की हुई जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस है.
अगर ज़्यादा स्ट्रेस वाले ऑब्वियसली सेक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली यू शुड बी मिनिमाइजिंग द एक्सपोजर इन दैट बैंक, कि जहाँ पे जो है वो लैंडिंग उन सेक्टर्स में हुई हो जहाँ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। करंटली ऑब्वियसली पहले तो एडीआर बहुत ज़्यादा कम है हमारे बैंक के, दूसरी उन्होंने जो लैंडिंग की हुई भी है वो भी बहुत प्रूडेंट है। ज़्यादातर कॉर्पोरेट लैंडिंग है जो है बड़े बैंकों की हुई है, और ऑब्वियसली पावर सेक्टर के अंदर, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो है वो लैंडिंग हुई। ऑब्वियसली गिवन द करंट कोविड-19 सिचुएशन, नो सेक्टर इज फूल प्रूफ। ऑब्वियसली क्रैक्स हर जगह जो है वो नजर आएंगे, एनपीएल कहीं से भी आ सकते हैं, but obviously chances of NPL are very low because of the prudent lending of the banking sector, because बहुत काफी ज्यादा जो है वो जो lending है वो इतनी aggressive नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो lending है भी वो भी जो है वो काफी ज्यादा नाप तोल के जो है वो lending की जाती है, जिसकी वजह से NPL जो है वो आने का इतना खर्चा नहीं है एज कम्पेयर टू लास्ट साइकिल। अगर लास्ट साइकिल की बात करें तो ऑब्वियसली जो इन्फेक्शन रेशो था वो बढ़ के 7% से 15% 16% के ऊपर चला गया था। वो वाली जो है वो सिनेरियो इज अनलाइकली और लेस लाइकली टू रिपीट। अब बात कर लेते हैं कोविड-19 की वजह से जो है वो क्या इम्पैक्ट आया। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली स्टेट बैंक ने 625 बेसिस से जो है वो इंटरेस्ट रेट्स कट किए, जिसकी वजह से इन ऑर्डर टू जनरेट डिमांड और स्टिमुलेट द इकोनॉमी, ताकि कंज्यूमर डिमांड जनरेट हो। इसके अलावा अगर आप लोन बुक की बात करें तो तकरीबन जो है 605 बिलियन के लोन, टोटल जो लोन बुक है दैट इज अराउंड 7 ट्रिलियन की हमारी जो है वो टोटल लेंडिंग बुक है ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, उसमें से तकरीबन कोई 605 बिलियन दैट इज अराउंड 7 to 8% जो है वो जो है उनके लोन जो है वो डिफर किए फॉर द नेक्स्ट ईयर। एस बी पी ने ऑब्वियसली कहा था कि दे विल डिफर द प्रिंसिपल पेमेंट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर इफ रिक्वेस्टेड। ऑब्वियसली अगर कोई बिजनेस जो है वो डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो दे विल ऑब्वियसली डिफर द पेमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिफिकल्टी। इसके अलावा 143 बिलियन के जो हैं वो लोन्स जो हैं वो रीस्ट्रक्चर किए गए। कोविड-19 की वजह से ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो बंद हो गई, तकरीबन जो मेजॉरिटी बैंक्स थे उनकी तकरीबन 20% ऑफ द ब्रांचेस दे वर क्लोज, बट नाउ अगर आप ये ब्रांचेस का नंबर देखें तो 92% ऑफ द ब्रांचेस दे आर ओपन। इसके अलावा ऑब्वियसली ब्रांचेस कम खुलने की वजह से जो जो चीज़ जो इम्पैक्ट करती है वो होती है फ़ी इनकम। फ़ी इनकम ऑब्वियसली ब्रांच का ऑपरेशन से एक जो है वो बैंक को अर्न करता है। तो व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि फ़ी इनकम के अंदर काफ़ी ज़्यादा, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपेयर करो तो डिफरेंट बैंक्स ने काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखा है, और तकरीबन कोई 8% का जो है वो ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है फी इनकम के अंदर बैंक्स की, बैंकिंग सेक्टर के। अगर आप फर्स्ट क्वार्टर की जो है वो फी इनकम को कंपेयर करें एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्वार्टर लास्ट ईयर। इसके अलावा एक वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, ऑब्वियसली दैट इज obviously the capital of the bank in case अगर बैंक obviously losses face करता है तो it has the buffer कि वो losses को cover up कर सके। तो जो रिस्क ऑब्वियसली रिस्की एसेट्स होते हैं उनका सर्टन प्रोपोर्शन है जो बैंक को अपने पास रखना होता है इन केस कि अगर वो डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से कोई ऐसी चीज़ आए जिसकी वजह से बैंक डिफिकल्टी फेस करे कैश फ्लोज के अंदर, तो इट कैन ड्रॉ दैट अमाउंट out and use it. So currently, what State Bank did is that in order to buffer up or increase the capital adequacy ratios of the banking sector, जो dividend था वो रोक लिया गया फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। उसकी वजह से ऑब्वियसली करंटली अगर आप देखा जाए तो एवरेज जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है फार अबव द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तकरीबन 18.7% और तकरीबन 19% का जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है बैंकिंग सेक्टर का, एज कम्पेयर टू जो है वो तकरीबन 10.5% की जो है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। तो काफ़ी ज़्यादा बफर है पाकिस्तानी बैंक्स जो है वो दे आर वेल कैपिटलाइज्ड you can say, but still that जो सेंट्रल बैंक है उसने जो डिविडेंड्स हैं फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स वो जो है वो रोक दिए गए इन ऑर्डर टू एनहांस द कार फर्दर। अब बेसिकली ये तो हो गया लोन साइड के ऊपर। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट साइड। इधर ऑब्वियसली जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि बैंक के पास दो एवेन्यूज होते हैं, या तो वो लेंडिंग कर दे या तो वो ऑब्वियसली it goes for investments or buying into government securities. There are two types of government securities. Firstly, there are T-bills, treasury bills जो कि 12 months से less tenure के होते हैं, and then there are PIBs जो कि 12 months से greater tenure के होते हैं। अब जो T-bills हैं basically as you say, तो जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं तो बैंक की कोशिश होती है कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बुक है उसका हायर प्रोपोर्शन जो है वो टी बिल्स के अंदर है, बिकॉज एज दे मेच्योर तो जब इंटरेस्ट रेट पीक करते हैं तो दे बुक
PIVs, और जिसकी वजह से they can earn a constant higher return in case even if interest rates decrease हो जाए तब भी. तो अब in the current scenario what has happened is that अगर आप स्टेबल के अंदर देखें, if you are evaluating a bank, तो जब obviously interest rates अगर आपने PIBs उस रेट पे लिए हुए जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई थे, तो जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं तो यू बुक ऑब्वियसली अगेन. सिंपल प्रिंसिपल है कि फॉर एग्जांपल मार्केट रिटर्न जो है वो इस वक्त 7% गया, बट एक बैंक है उसने 14% के ऊपर पीआईबी लेकर रखा हुआ, तो उसको तकरीबन कोई 7% का एडिशनल डिफरेंशियल मार्कअप जो है वो आ रहा होगा, जो उसकी इनकम को जो है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा. अब करंट सिनेरियो के अंदर ये बेसिकली अगर आप लास्ट क्वार्टर देखें मार्च का, तो उसके अंदर दिस वाज द सिचुएशन के टोटल इन्वेस्टमेंट्स जो है वो उसके अगेंस्ट जो है पीआईबीज के अंदर तकरीबन 45 बिलियन का टोटल सरप्लस इस वक्त जो खड़ा हुआ है. अब बेसिकली सरप्लस कब आता है कि आपने इंटरेस्ट रेट्स जो थे वो हाई थे, तब आपने पीआईबीज बाय कर लिए. जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने लगे तो ऑब्वियसली यू बुक अगेन बिकॉज यू आर ऑब्वियसली अर्निंग मोर देन व्हाट द मार्केट इज ऑफरिंग. तो करंटली इन दिस सिनेरियो तकरीबन 45 बिलियन के जो टोटल सरप्लसेस हैं वो खड़े हैं. यहाँ पे अगर आप देखें तो इट्स 45 बिलियन, और ये तब था जब एट द एंड ऑफ मार्च क्वार्टर. इफ़ यू टॉक अबाउट उसके बाद से तकरीबन कोई 500 बेसिस के जो कट हैं वो आ चुके हैं. तो दिस नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज. सो गोइंग फॉरवर्ड व्हाट बैंक विल डू ऑब्वियसली कि जो कोर इनकम में ड्यू टू डिक्लाइन इन द इंटरेस्ट रेट्स जो भी कमी आएगी वो पूरी इस तरह हो जाएगी गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो रियलाइज कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ वेरी हेल्दी सरप्लस ऑन देयर पीआईबी पोर्टफोलियो. तो अगर आप एक बैंक को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो यू शुड बी looking at के उनका PIB पोर्टफोलियो के ऊपर सरप्लस कितना है. इन दिस सिनेरियो हायर द सरप्लस ऑन द PIB पोर्टफोलियो बेटर इट इज फॉर द बैंक. और सेकंड चीज ये हो सकती है कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का कितना प्रोपोर्शन जो है वो PIBs के अंदर है. अगर ज्यादा प्रोपोर्शन PIBs के अंदर ऑब्वियसली बैंक ने जो है वो रखा हुआ है तो ऑब्वियसली दैट इज बेटर. बट ऑब्वियसली यू नीड टू सी कि किस रेट के ऊपर PIBs लिए गए हैं. उसके लिए सबसे जो अच्छा ऑब्वियसली बेंचमार्क होगा इन द करंट सिनेरियो वो ये होगा कि जो ऑब्वियसली दिस क्वार्टर के रिजल्ट आए तो आप जाके देखेंगे पीआईबी सरप्लस कितना है पर बैंक. हायर द सरप्लस बेटर इट इज फॉर अ बैंक. सो दिस इज हाउ यू एवेल्युएट कि कितना ऑब्वियसली व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर इंक्रीजिंग, सो टी-बिल्स में कितना प्रोपोर्शन है, व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स पीक तो पीआईबी में कितना प्रोपोर्शन है. एट द टॉप इफ यू बॉट अ लॉट ऑफ पीआईबी सो दैट इज वेरी गुड फॉर अ बैंक कि जब इंटरेस्ट रेट्स जो है वो नीचे आने शुरू होंगे तो दे विल हैव अ वेरी हेफ्टी सरप्लस. इसके अलावा एक और चीज़ होती है, अगर आपने ऑब्वियसली एक बैंक को इवेल्युएट करना हो तो उसकी जो है वो कॉस्ट टू इनकम रेशो को देखा जाता है. कॉस्ट टू इनकम रेशो बेसिकली ये होता है कि ऑब्वियसली अगर एक बैंक है उसने 1 रुपया कमाया तो उसमें से कितना जो है वो उसकी कॉस्ट है. फॉर एग्जाम्पल एक बैंक ने 1 रुपया कमाया तो उसमें 50 पैसे उसकी कॉस्ट है या 60 पैसे उसकी कॉस्ट है. जितनी कम ऑब्वियसली उसके जो कॉस्ट टू इनकम रेशो होगा उतना अच्छा है एक बैंक के लिए. अब इन द करंट सिनेरियो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट तकरीबन कोई एवरेज हम लोगों का तकरीबन 50-55% जो है वो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है ऑफ द बैंकिंग सेक्टर. करंट सिनेरियो के अंदर आपने ऑब्वियसली ये चीज़ देखनी होगी कि कौन से बैंक हैं जिनमें वन ऑफ्स हैं. तो ये मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो हैं वो ये इस तरीके से उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी बढ़ा हुआ होता है कि जो है वो वन ऑफ इम्पैक्ट्स की वजह से जो है एडमिन एक्सपेंसेस बढ़ हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली दे हैव टू स्पेंड. फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ HPL हियर 74% है उसका कॉस्ट टू इनकम रेशियो. इट डजंट रियली मीन कि ऑब्वियसली उनकी एडमिन एक्सपेंसेस ही बहुत ज़्यादा आए हैं. आपने देखना होगा पिछले ऑब्वियसली 2 से 3 साल के अंदर या 4 से 5 साल के अंदर कॉस्ट टू इनकम रेशियो किधर है. इफ देयर आर नो ऑब्वियसली वन ऑफ आइटम्स उनको एक्सक्लूड करने के बाद जो है वो कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या निकलता है कि ऑब्वियसली बैंक जो है वो कितनी कॉस्ट इनकर करता है. 1 रुपया या ऑब्वियसली 100 रुपये कमाने में कितने रुपए वो अर्न कर रहा है. तो लोअर द कॉस्ट टू इनकम रेशियो, लोअर ऑब्वियसली द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बेटर इट इज फॉर अ बैंक. I guess that is all on the banking sector. So let's summarize what we just discussed. कि सबसे पहले ऑब्वियसली आपने अगर बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो यू शुड बी लुकिंग एट के जो है इंटरेस्ट रेट्स का आउटलुक क्या है. इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ से बढ़ने वाले हैं सही है तो ऑब्वियसली दैट इज पॉजिटिव फॉर अ बैंक, और अगर कम होने वाले हैं तो दैट इज नेगेटिव फॉर अ बैंक. अब इन द करंट सिनेरियो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं इन्फ्लेशन से. गोइंग फॉरवर्ड अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे और फिर उसके बाद ऑब्वियसली दैट विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट द बैंक. अगर इंटरेस्ट रेट्स ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कम हो रही है तो इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन की तरफ चल जाएंगे और ऑब्वियसली दैट इज नेगेटिव फॉर अ बैंक.
सो और सेकेंडली जो चीज़ ऑब्वियसली आपने देखनी है वो डिपॉजिट बेस देखनी है कि कितना बड़ा है डिपॉजिट बेस। बिगर जितना ज़्यादा बड़ा डिपॉजिट बेस होता है एक बैंक का, उतना ज़्यादा जाहिर सी बात है एक बैंक के अंदर लैंडिंग कैपेसिटी होती है और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी होती है और उसका ऑपरेशन उतना ज़्यादा फैले हुए होता है। और विद इन डिपॉजिट्स आपने ये देखना है कि प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्वियसली द करंट अकाउंट डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट डिपॉजिट कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा करंट अकाउंट डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट डिपॉजिट या करंट कासा है, मोस्ट प्रेफरेबली करंट अकाउंट जितना ज़्यादा होता है उतना पॉजिटिवली ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट उतने कम होते हैं और उतना ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं वो किसी भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को। नेक्स्ट चीज़ जो आपने देखनी है ऑब्वियसली व्हेन यू आर बैंक्स पोर्टफोलियो, तो आपने ये चीज़ देखनी होती है कि उसकी लोन क्वालिटी किस तरह की है। अगर उन्होंने दैट इज नेगेटिव फॉर द बैंक। इसके अलावा जो चीज़ ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स की साइड पे आपने वैल्यूएट करनी होती है वो है द क्वांटम ऑफ पीआईबीज। जितना ज़्यादा पीआईबी का क्वांटम होगा इन द करंट सिनेरियो, ऑब्वियसली बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड, इट इज़ पॉजिटिव फॉर अ बैंक। और लास्टली कॉस्ट टू इनकम रेशियो शुड बी इवैल्यूएटेड कि एक बैंक जो है वो कितना कॉस्ट जो है वो पे कर रहा है व्हेन इट अर्न्स और मेक्स मनी। सो हायर द प्रोपोर्शन ऑफ द कॉस्ट, not better for a bank, or lower the proportion of the cost better for a bank. This is all, I guess. If you guys have any question, you can write on the chat. Over to you. Thank you, Faisal. I think my voice is clear now. Okay. So Faisal, thank you so much for that overview. If you can just briefly talk about your top picks, because a lot of people are asking questions. Like, should they buy BOP, Suneri Bank, HPL, Mizan, and so on and so forth. So if you can just briefly touch upon the top picks from your side. So, I mean, if you guys want to know my top picks, you can always refer to my reports. We write regularly our reports, and we just published my report on the banking sector last month. So, you guys can approach me on my email address. My email address is faisal.irfan@KSB Securities. You can obviously go on our research portal and access our reports, and you can obviously uh, find my recommendations on that. And you can obviously contact me on our cell number, and then obviously I can give you advices as per your portfolio. But publicly, obviously, it's not a good time. Okay, Faisal, we have a question here. How long it? Hello, Faisal, can you hear me? So we have a question here. How long it will take bank stocks to recover? Yeah, I mean, if you talk about right now, currently, obviously, because of the COVID-19 situation, what happened is कि recently काफी ज़्यादा जो है वो because of the anticipation of the decline in interest rates, बैंक के stocks जो हैं वो decline की तरफ गए. But I mean, in the current scenario, I believe कि थोड़ा सा ज़्यादा ही undervalued हो गए going forward, and we could expect कि in the next monetary policy जब जो है वो ऑब्वियसली अगर इफ इन्फ्लेशन अगर यहाँ पे ही रहती है तो ऑब्वियसली जो है वो कट नहीं आएगा, तो दैट वुड बी अ टाइम दैट वी कुड सी अ लिटिल इंक्रीज और रिकवरी इन द बैंकिंग सेक्टर के जब ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट स्टेटस को रहेंगे ऑब्वियसली इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज की तरफ बढ़ेगी और गिवन द करंट कोविड सिचुएशन ऑब्वियसली इन द राइज इन electricity tariffs and the petrol prices, so obviously we don't expect कि जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे आने वाली है, तो इंटरेस्ट रेट भी जो है वो इसी लेवल पे रहेंगे, तो विच इज़ ऑब्वियसली पॉजिटिव फॉर द बैंक. तो ऑब्वियसली नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी तक वी शुड वेट, तो अगर स्टेटस को आता है तो वी कुड सी अ रिकवरी. We have another question. So basically, you talked about the power sector and the investment of banks in the power. How do you see it in the future, looking at the current situation in Pakistan going forward? How is it going to impact the banks?
So yeah, if you talk about the power sector, obviously, I mean, in the current scenario, it's a very hedged sector because I mean almost all the IPPs are getting dollarized return of 14% on their investment. So I mean, if you talk about IPPs, it's a very safe investment because their cash flows don't get hurt. But in the current scenario, what's happening is that government is trying to renegotiate tariffs. अगर tariffs की renegotiation की बात होती है तो obviously that is going to impact the power sector. Otherwise, yeah, power sector is very foolproof और हमारी policy है. It's called one of the best in the world power policy from the perspective of the power producers because dollarized return of 14% कहीं बहुत कम जगह है दुनिया में जहाँ मिलता है तो obviously that's why banks obviously have lended a large chunk of money to uh, the power sector because obviously वहाँ social security और जो security of the funds है वो बहुत है तो which is obviously जो NPLs हैं वो वहाँ से आना का chances भी बहुत कम है मतलब इतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अगर आप होलसेल सेक्टर की बात करें या रिटेल सेक्टर की बात करें ऑब्वियसली डिमांड इज डैम्पनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी इज अ नेसेसिटी जिसकी डिमांड ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड इंक्रीज ही होनी है नेक्स्ट यू आर ऑफरिंग अ 14% dollarized IRR so it's for the investment in the power sector obviously the chances of getting NPLs are really low so that's why the exposure is very high. Thank you for that, Faisal. We have another question. Why makes Mizan and MCB different from others? They're very downward sticky. So if you can probably comment on Mizan and MCB. So if you talk about Mizan, I mean for special obviously specific recommendations, you can always contact me. So one of the reasons is for the Mizan is an Islamic bank. So if what happens with Islamic banks is that they don't have minimum deposit rate. So when the interest rates increase, obviously their net interest margins or NIMs increase in proportion to that. So if you compare it with the conventional bank, जो उनके profitability है उसमें growth काफी ज़्यादा आता है when the interest rate increases and same in vice versa कि जब interest rates गिरना शुरू होते हैं तो obviously profitability में chances हैं कि जो net interest margins और shrink भी उसी हिसाब से हो तो इसकी वजह से obviously जो था वो काफी ज़्यादा जो है वो स्टॉक ने जो है वो सफर किया in the recent times कि obviously because of the expectation के जो है वो profitability काफी ज़्यादा जो है वो hurt होगी. Thank you. There's another question. What do you think low interest rate could be good for automobile sector? Yeah. Yeah, lower interest rates are obviously very good for the auto sector because I mean most of the auto sector major ये चीज होती है basically people go and they get a car loan and then they obviously uh, buy a car with that rather than paying cash. So I mean lower interest rates obviously would generate demand decently. अगर आपने कल परसों ऑटो के नंबर भी आए थे तो देखा होगा तो उसमें काफी ज्यादा uptake है, sales are recovering. So it's because obviously the decline in interest rate because अगर आप पहले compare करें तो अगर आप Toyota Corolla GLI की बात कर रहे हैं तो interest payments जो थी for obviously a car is around 55,000-56,000 even 13% interest rate था वो अब कम हो गए 35,000-34,000 रहेगी तो obviously that is positive for the auto sector obviously उनकी demand जो है वो expectation है near term के वो recover कर जाएगी in like 2 months back, obviously no cars sold because of the lockdown. That was, I mean, an exceptional month. But going forward, obviously with the decline in interest rate, we could see an uptick in the demand. Thanks a lot. There's another question. How long is interest rate supposed to be at 5% in estimated time? The interest rates currently are at 7%. Obviously, we cannot, I mean, give you a specific timeline, but obviously you should follow inflation. अगर आप inflation को follow कर रहे हैं तो अगर obviously inflation का outlook going forward ये है कि increase होगी तो obviously interest rates are going to go up. If the outlook is कि inflation यहाँ से नीचे आ जाएगी और under control रहेगी तो obviously spread bank ये काम कर सकता है कि it can obviously go for a cut, further cut in the interest rates.
So I mean, in the current scenario, the situation is very volatile, and you cannot, obviously you have to see कि going forward inflation किस तरीके से टर्न आउट करती है. Recently petrol prices increase हुई हैं, जिसकी वजह से obviously inflation पे थोड़ा सा pressure रहेगा going forward. But उसके बाद किस तरीके से inflation turn out करती है, it all depends on the COVID-19 situation. कि obviously if commodity crisis जो पहले obviously आपने 3-4 महीने फरवरी में जो witness किया, अगर वो दोबारा देखने को आता है due to COVID-19, तो obviously inflation ऊपर जा सकती है, then we could obviously see interest rates going up might. But in the current scenario, obviously to provide relief, स्टेट बैंक ने काफ़ी प्रोएक्टिवली जो है वो एक्ट किया और इंटरेस्ट रेट जो है वो कट किए. और गोइंग फॉरवर्ड भी इन्फ्लेशन अगर यहीं 7 से 8, और इन्फ्लेशन भी ऑब्वियसली काफ़ी सबड्यूड थी फॉर द लास्ट 1-2 मंथ्स, और तकरीबन कोई 8% के ऊपर करंट इन्फ्लेशन है. अगर गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन यहीं पे रहती है या यहाँ से नीचे आती है, तो ऑब्वियसली वी कुड सी अ कट. But obviously, it all depends on the inflation. You should be looking at the inflation very closely in order to obviously take a hunch on going forward interest rates कहाँ जाएंगे. Thank you for that, Faisal, again. There's another question on our Facebook page. Are local banks facing the same challenges as the banks in Europe and US? The Pakistani banks, if you compare, are I mean, not like the obviously the regional banks or the banks in Europe. In most of the if you talk about globally banks के जो, I mean, the whole purpose of the bank is to take money from the depositor and then it lends to corporates or individuals. So in Pakistani banks का जो obviously the thing is कि उन के वो वहाँ obviously they don't lend that aggressively. What they do is that they obviously park their funds in the government securities, which is obviously in the current scenario very good for the bank because they are very less risky. If you talk about banks in Europe and America, obviously they are facing a lot more stress than what Pakistani banks are right now because of their high lending. In obviously, if you talk about the regional, markets or the countries, more in those job advances to deposit ratio is nearly 80%. If you go in the developed economies, it's more than 100%. So banks in Pakistan are not are not lending that aggressively. So I think which is positive in the economic times like these. Obviously, they won't face that stress. Obviously, there is stress, but the 60 to 5 billion के जो loans and they've been uh, asked to reach or pay deferment of the principal, and then तकरीबन 120 billion के जो loans and they are asked for the restructuring, but that whole sums up to only 10% of the book till now, which is not that big a number as compared to banks in the West because of obviously the low lending of the banks in Pakistan. So, Faisal, we have another question. How much correlated are banks and the oil stocks? I mean, they are not. I mean, you could say that when in Pakistan, what happens is when oil prices go up, obviously the inflation in the economy goes up, and then the interest rates go up. So, but this is not obviously there is no direct correlation with that. You could obviously create a correlation like this. Obviously, because we are a net importer of oil, and most of our import bill is comprises of oil, and whenever oil prices go up, we see inflation in our economy. So, I mean, in that scenario, they are correlated, but you cannot obviously get a direct correlation between both. There's a question asked on Facebook. In the recent Sukuk offering, what was the share of the total chunk that Mizan Bank acquired? I mean, if you, I don't know the exact number, but it wasn't. I mean, in the recent auction, it wasn't that aggressive as compared to the last auction. But obviously, even if you want to see an exact number, you should be looking at the financial statements that come out this quarter, which are obviously after the results. You will look at, you will see the exact numbers. Right now, I mean, if you want to know, you can check out on the website of the Sukuk offering, but I don't think so. There'll be exact numbers there. So you'll have to wait कि कितनी amount से जो है वो obviously investment book increase हुई है in order to gauge के Sukuk participation कितना था.
Thank you for that. There's another question. I don't know, Professor, if you can answer. Most brokerage houses are saying that the bank stocks are cheap, but for a patient investor, what do you have to say about it? Yeah, obviously the current valuations are very obviously attractive, but I mean obviously there is a risk because of the COVID-19 situation. You don't know the economy is currently, I mean, very fragile. So uh, obviously from the valuation perspective, they're very attractive, you could say. But again, we have to look at the economy, because obviously banking sector की strength से ही obviously economy की strength जो है वो determine होती है. Pakistani banks, I guess, I mean, they are well capitalized. They are able to take any shock uh, that comes in their way due to COVID-19. For the valuations, obviously, you can read my report and recommendation. They are available on KSB website. Okay. With this, we'd like to end the session. Thank you so much, Faisal, for joining in. For any questions regarding banking sector or our KSB research, you can subscribe to ktrade.pk, download the application, subscribe to our research, and you can get in touch with a research analyst as well. With that, I'll conclude. If you've got any feedback for us, you can inbox us on our Facebook page, our Twitter account, LinkedIn pages, and so on and so forth. So thank you everyone who joined in, and see you guys next time. Take care, and Allah Hafiz.